Good morning, dear students. Today onward, we are going to begin social science classes for the 10th standard. So, at very beginning, we will know the meaning of the word social and science. The word social means society, science means the intellectual and practical activity. So, in simple words, we can say that social science means the activity related with the society and human relationship. The subject social science consists four parts. First one is the geography, second one is the history, third civics, and fourth economics. We will go for the geography. First we should know the meaning of the word geography. The word geography is made up of two words, geo and graphy. Geo means earth, graphy means the pictures and the diagrams. So, the study of the earth surface with the help of pictures and diagrams is called geography. Eratosthenes was the father of geography, like Herodotus is the father of history. In this subject geography, we will study various things like the mountains, oceans, rivers, earth surface, atmosphere, climate, and other human related things also, like the census, demography of a country. So we should proceed for the first chapter, resource, through various charts and diagrams and audio things. There are the two chapters of resource, resources of India first and resources of India second. Both the chapters consist 5 marks for each. It means totally 10 marks. So at the beginning we are going to study resources of India first, which includes soil, water, forest and wildlife. In our first class, we will learn about resource, its meaning, importance, and type. Let us begin with resource. रिसोर्स शब्द जब हमारे दिमाग में आता है तो इसका हिंदी में हम अर्थ जानते हैं तो रिसोर्स का अर्थ होता है उपयोग के लिए उपलब्ध सामग्री। एक शब्द में हम कहें तो संसाधन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एनीथिंग विच फुलफिल्स ह्यूमन वांट्स more or less it helps in solving problems are called resource। ऐसी कोई भी वस्तु जो इंसान की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उसकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध करवाती है उसे हम रिसोर्सेज या संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए वाटर इज ए रिसोर्स as it is used for drinking, irrigation, cleaning purpose and cooking। The main benefit of the resources is that resource makes human life simple and happy. Man can convert any substance or material into resources। Substance means solid or liquid material। कोई भी ठोस वस्तु या तरल पदार्थ हो उसे हम रिसोर्स कह सकते हैं और किसी भी सब्सटेंस को इंसान रिसोर्स में चेंज कर सकता है। कोई भी प्राकृतिक तत्व जिसको इंसान मॉडिफाई मीन्स नया रूप दे करके चेंज द शेप तो उसको अपने लिए उपयोगी बना सकता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। मॉडिफाइज करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस, स्किल एंड टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट नेचुरल एलिमेंट्स बिकम रिसोर्सेज when man modifies them to be more useful and valuable to fulfill his needs with the help of his intelligence, skill and technical knowledge। आमतौर पर रिसोर्सेज प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके हम अदर रिसोर्स भी बना सकते हैं जिनको हम मैन मेड रिसोर्स भी कहते हैं। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन of resources.
अकॉर्डिंग टू मैकनल पीई, मैकनल पीई एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने रिसोर्स का डेफिनेशन दिया। तो क्या डेफिनेशन था? नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which are provided by nature and are useful to man। मैकनल पीई कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो नेचर के द्वारा अर्थात प्रकृति के द्वारा उपलब्ध होते हैं और वो इंसान के लिए उपयोगी होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, मैन हिमसेल्फ इज ए रिसोर्स। एन एजुकेटेड, skilled and healthy man is a valuable resource for a country। मनुष्य को भी एक संसाधन कहा गया है। मनुष्य किसी भी देश के लिए संसाधन है। वो अपने स्किल्ड का और अपनी एजुकेशन का यूज करके अपने देश के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो सकता है। When we talk about natural resources, the things which is provided by the nature, some examples we will go for: land, soil, water, forest, wildlife, minerals and powers. All these things are provided by nature. It is not man-made. These things which we have discussed are not man-made, so it is called natural resources। संसाधनों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता है। तो resources can be classified on the basis of ownership, availability, distribution and usage। Now we will know classification on the basis of ownership। ओनरशिप का अर्थ होता है द स्टेट ऑफ ओविंग समथिंग, अर्थात किसी भी वस्तु का मालिक होने की कंडीशन में। तो ये तीन प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। फर्स्ट वन इज पर्सनल रिसोर्स, इट बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन, इट मीन्स प्रॉपर्टी एंड हेल्थ एटसेट्रा। सेकेंड वन इज नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स or the resource of nations, it is also called national resource। wealth of nation, देश की प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, इसलिए ये पर्सनल रिसोर्सेज से डिफरेंट है। मिलिट्री पावर, पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म इज आल्सो ए रिसोर्स। देशभक्ति किसी एक व्यक्ति या 5 व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती, एक नेशन के लिए पेट्रियोटिज्म होता है। मिलिट्री पावर ये भी किसी व्यक्ति का पर्सनल नहीं हो सकता, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज में इंक्लूडेड है। एंड वर्ल्ड रिसोर्स, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ऐसी वस्तुएं जिस पर कोई देश या व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता। फिजिकल और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, जैसे कि हम एयर का डिवीजन नहीं कर सकते कि this air belong to India, it is Indian air, and other air is belong to the other country, it can be Russian air or Chinese air। So the things which is belong to the whole world is called world resource। Second classification, classification on the basis of availability, renewable resources, non-renewable resources, recyclable resources and inexhaustible resources। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिनको रीजनरेट कर सकते हैं, नेचुरली वो रीजनरेट हो सकते हैं। जैसे कि खेती के लिए काम में आने वाली जमीन, उसको मैन्योर, मैन्योर मतलब खाद बीज के द्वारा फिर से उपयोगी बनाया जा सकता है। सेकंड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको एक बार यूज करने के बाद में फिर से उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इट मीन्स दोज रिसोर्सेज व्हेन वंस यूज्ड दे आर गॉन फॉर एवर। एग्जाम्पल, पेट्रोल, कोल। पेट्रोल को हम एक बार यूज कर लेते हैं, उसके बाद में फिर से यूज नहीं किया जा सकता। रिसाइकेबल रिसोर्सेज, दोज मिनरल्स विच कैन बी रिप्रोसेस्ड एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन, ऐसे रिसोर्स है जिनको रीप्रोसेस्ड करके बार बार यूज किया जा सकता है। जैसे मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर। लोहे का प्रयोग, आयरन का प्रयोग हम किसी टेबल बनाने में कर सकते हैं,
उस टेबल को फिर से रिसाइकल करके दूसरी चीज बनाई जा सकती है। इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो समाप्त न हो सके या जिसे कंप्लीटली समाप्त न किया जा सके। द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी फिनिश्ड और यूज्ड अप कंप्लीटली, ऐसे रिसोर्सेज जिनका पूरी तरह से उपयोग करने के बाद भी वो समाप्त नहीं होते हैं। Those resources which are not exhausted even if they are used. For example, solar energy, ocean water, हम उनमें से जितना यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड नहीं होंगे, अर्थात समाप्त नहीं होंगे। Now we are going to wind up our class. Student, remaining part of this chapter we will learn in the next class on next Monday. Thank you very much. Take care of you.